afternoon, students. Students, today I'll ask some questions from you all and those who Good afternoon, students. Students, today I'll ask some questions from you all and those who know the answers will drop their answers in the chat box and to whom I'll consider or address will unmute himself or herself and give the answer in the full sentences. Okay? So students, tell me, how do we purchase things from the market? हम मार्केट से गुड्स या सर्विसेज को कैसे परचेज करते हैं, खरीदते कैसे हैं सामान मार्केट में जाके? एनीवन? यस मैम, हम मार्केट से सामान पैसे देकर खरीदते हैं. वेरी गुड. सो वी यूज टू गिव मनी in exchange of the commodity or the things we want to get purchased from the market. Next, how things used to be brought and sold in ancient times. पुराने जमाने में लोग अगर कोई चीज उनको खरीदनी रहती थी या बेचनी रहती थी तो वो कैसे करते थे? यस मैम, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जैसे कि मुझे कोई चीज की जरूरत है और आपके पास कोई चीज है, उसकी मुझे नीड है, तो मैं आपको वो दे दूंगी जो मेरे पास है, क्योंकि आपको उसकी नीड है, और आपसे वो ले लूंगी, एक्सचेंज कर लूंगी, अदला बदली कर लूंगी. Very good. But this process is called as barter system in the ancient times. Next, when they purchase commodity from the market and in return give amount according to the value of that commodity, this process is called as. जब हम मार्केट से किसी commodity को खरीदते हैं और उसके बदले में उस पर्सन को, उस प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को पैसे देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनीवन? आप पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम का यूज करते थे. उस प्रोसेस को हम बार्टर सिस्टम कहते थे कि आपने मेरी कमोडिटी हमसे ले ली और हमारी कमोडिटी आपने अपनी कमोडिटी हमें दे दी, हमारी कमोडिटी आपने ले ली. लेकिन अब हम जो कमोडिटी को परचेज करते हैं उसके रिटर्न में जो अमाउंट देते हैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एनीवन? जस्ट टेक अ ट्राई. Okay, so students, today we will discuss about the topic exchange in detail. Now, here on your screen, you are showing, there is showing a picture of words with the bold letters containing the topic name, that is exchange, with some more words, that is market, currencies, currency, trading, central, foreign, forex, banks, economic, trading markets, trade, rates, dollar, rupees, companies, etc. So these all are some words which are connected with the topic exchange. Now students, tell me what type of goods we purchase from the market. हम किस तरीके के goods market से purchase करते हैं? Anyone? यस मैम, हम मार्केट से जैसे ग्रोसरी का सामान, फर्नीचर और हो गया हमारा, क्लोथ्स हो गए हमारे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब परचेज करते हैं. वेरी गुड. सो हम क्या करते हैं, मार्केट से अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को परचेज करते हैं. विदाउट मनी हाउ वी परचेज गुड्स फ्रॉम द मार्केट. अगर सोचिए हमारे पास रुपए ही ना हो तो हम गुड्स को कैसे खरीदेंगे मार्केट से? यस मैम, जब हमारे पास मनी नहीं था, जैसे हम लोग पहले करते थे एक्सचेंज के थ्रू, वैसे ही परचेज करें. वेरी गुड. कि अपनी कमोडिटी को उस दूसरे पर्सन को दे देंगे और उसकी कमोडिटी को खुद ले लेंगे. So let's understand what does the word exchange means. An exchange is a marketplace where securities, commodities, derivatives and other financial instruments are traded. Exchange क्या है? Exchange एक वो marketplace है जहाँ पे आप securities, commodities या derivatives या फिर किसी भी financial instrument का लेना और देना, buy और sell करते हैं.
The core function of an exchange is to ensure fair and orderly trading and the efficient dissemination of price information for any securities trading on that exchange. Exchanges give companies, governments, and other groups a platform from which to sell securities to the investing public. एक्सचेंज क्या करता है, जो कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट होता है या कोई अदर ग्रुप होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को जो भी पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहती है उनके बीच में सेल आउट कर सके अपनी सिक्योरिटीज को. Now, what is the core function of an exchange? The core function of an exchange is to ensure fair and orderly trading and the efficient dissemination of price information for any securities trading on that exchange. Exchange give companies, government and other groups a platform from which to sell securities to the investing public. So basically जो आपका exchange का function होता है वो यही होता है कि आप जो अपनी सिक्योरिटीज हैं वो इन्वेस्टिंग पब्लिक के सामने सेल आउट कर सके ताकि जो पब्लिक है वो अपना मनी आपकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, उसको खरीदे, क्योंकि आपने जो भी सिक्योरिटीज बनाई है उनसे आपका एक मोटिव रहता है प्रॉफिट को अर्न करना अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मनी. अभी हमने ये तो बात कर ली कि जब हमें किसी कमोडिटी को खरीदना या बेचना होता है तो हम मनी का यूज करते हैं, लेकिन ये मनी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी, और यू कैन से व्हाट डू यू हाउ डू यू डिफाइन मनी? एनीवन? Yes, ma'am. Money is the object by which we purchase goods Very from good. the market. Nice try, nice attempt, Divyanshi. So money means it is a kind of an object through which help us to buy or purchase any commodity from the market. But a famous economist, Sir Hartley Withers, has defined money as money is what money does. Money वो है जो money करती है. So this is he is the famous economist who defined money. Either we can't define money in terms. Okay, how many types of money are there? Money के कितने types होते हैं? Anyone? मुद्रा, जिसे हम हिंदी में Yes, मुद्रा ma'am. कहते हैं. Yes, Yes, ma'am. मनी के दो टाइप्स होते हैं, एक जो होता है कॉइन होता है, एक नोट्स के रूप फॉर्म में होता है. Very good. A nice try, but there are three types of money. So first one is paper money, then metallic money, then gold. Your comes paper money, metallic money and your coins. Coins में आपके सिक्के आ जाते हैं. पेपर मनी में आपका क्या आता है? आपका लाइक 10 रुपी का नोट, 20 रुपी का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट. एंड मेटल कॉइन्स में आपके क्या आते हैं? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर कॉइन्स. Now in the same form there are many types of exchange. So your exchange is divided into the two types: commodity exchange and currency exchange. First is commodity exchange. A commodity exchange is a legal entity that determines and enforces rules and procedures for trading standardized commodity contracts and related investment products. आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब आप किसी कमोडिटी के एक्सचेंज में डील करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? कमोडिटी एक्सचेंज में. ये क्या होता है? ये एक लीगल एंटिटी होता है जो डिटरमाइन करता है या एनफोर्स करता है वो सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को जो कि किसी कमोडिटी को बाय या सेल करने में फॉलो किए जाएंगे, या किसी कमोडिटी को बाय या सेल करने की या उनकी ट्रेडिंग करने में फॉलो अप किए जाएंगे. A currency exchange. A currency exchange is a business that has the legal right to exchange one currency for another to its customer. अब करेंसी एक्सचेंज में नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आप अपने रुपए का एक्सचेंज करते हैं, जैसे रुपी टू डॉलर और डॉलर टू रुपी. अब अमेरिका से अगर लोग इंडिया आते हैं तो वो क्या करते हैं? डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कराते हैं, तभी तो वो यहाँ के प्रोडक्ट्स और यहाँ की चीजें खरीद पाएंगे. अगर आप यहाँ किसी शॉपकीपर को डॉलर देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जाएगा नहीं करेंसी एक्सचेंज कराने. सो क्या होता है? जो भी बाहर से लोग आते हैं वो अपनी करेंसी को
एक्सचेंज करा लेते हैं. Currency exchange of physical money, coins and paper bill is usually done over a counter at a teller station. नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज. अब कितने तरीके के एक्सचेंज होते हैं. सो पहला बार्टर सिस्टम और डायरेक्ट एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम और डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है. The direct exchange of good is called barter. According to Sir Thomas, direct exchange of one commodity for another is termed as barter. तो barter system क्या था. barter system एक वो सिस्टम था जिसमें हम एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी देते थे. लेकिन बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चल पाया. क्योंकि इसमें लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड रहती थी. क्योंकि कभी कभी क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपके पास वीट बल्क क्वांटिटी में है, मेरे पास राइस बल्क क्वांटिटी में है. मुझे तो वीट चाहिए बट आपको राइस नहीं चाहिए, तो आप मुझसे डील करेंगे ही नहीं. और जब आप डील नहीं करेंगे तो मेरी बॉन्ड, मेरी नीड कहीं ना कहीं अनसैटिस्फाइड रह जाएगी. इसलिए बार्टर सिस्टम हमारे लिए एक बेटर सिस्टम साबित नहीं हुआ था. लेकिन बार्टर सिस्टम को हम डायरेक्ट एक्सचेंज भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें एक कमोडिटी के बदले हमें दूसरी कमोडिटी मिल जाती है. नेक्स्ट इज मनी एक्सचेंज. When the exchange is carried out through the medium of money, then it is called money exchange or indirect exchange. जब हम किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए पैसों का यूज करते हैं, रुपयों का यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मनी एक्सचेंज. जैसे जो कि आज के टाइम में फॉलो होता है. अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप सब्जी के बदले सब्जी ही नहीं देते हैं, आप सब्जी के बदले उन्हें रुपए देते हैं. उस जितनी क्वांटिटी में आप जो चीज लेते हैं आप उतना ही रुपए उनको दे देते हैं. So these are the two basic forms of exchange. First one is barter system or direct exchange. Second one is money exchange. Now हर चीज की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं. ऐसे एक्सचेंज की भी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस है. पहला, टू और मोर देन टू पार्टीज. दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर दो या दो से ज्यादा पार्टीज नहीं होंगी तो एक्सचेंज होगा किसके बीच में. भाई एक पार्टी देने के लिए होती है, दूसरी पार्टी लेने के लिए होती है. तो दो टर्म्स यूज होते हैं ना, बाय और सेल. तो एक पार्टी बाय करेगी, दूसरी पार्टी सेल करेगी. सो टू और मोर देन टू पार्टीज. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स और मनी. अपने गुड्स और मनी का ट्रांसफर करना. भाई जो एक पार्टी गुड्स दे रही होगी उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा, मनी. और जो पार्टी मनी दे रही होगी उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा, गुड्स. तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और मनी मतलब उसने अपने, एक पार्टी ने अपने रुपए दिए तो उसको इन रिटर्न गुड्स मिले, और जिसने गुड्स दिए उसने इन रिटर्न क्या दिया, रुपए दिए. लीगल ट्रांसफर. जो भी ट्रांसफर होना चाहिए वो ऑन पेपर्स होना चाहिए और लीगल होना चाहिए. किसी भी इलीगल चीज में आपको डील नहीं करना है. नेक्स्ट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट होना चाहिए. भाई बार्टर सिस्टम को हमने क्यों यूज में नहीं रखा, क्योंकि उसमें यही दिक्कत हो रही थी कि एक पार्टी की तो नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जा रही थी लेकिन दूसरे की नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से दूसरा क्या करता था, हमेशा डील करने से पीछे स्टेप बैक कर लेता था या फिर मना कर देता था. लेकिन एक्सचेंज में क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पार्टीज का मतलब बन रहा. एक जिसको गुड्स चाहिए उसको गुड्स मिल रहा है और जिसको इन रिटर्न मनी चाहिए उसको उसका इन रिटर्न मनी मिल रहा है. सो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. नेक्स्ट इज ऑप्शनल और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर. एक्सचेंज में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, इंडिपेंडेंस होती है. आपको जिसके साथ एक्सचेंज का फंक्शन फॉर्म करना है आप उसके साथ करिए, आपको जिस वे में करना है आप उस वे में करिए. कोई किसी को किसी भी चीज के लिए फोर्स या प्रेशराइज नहीं कर सकता है. So these are the basic 5 major characteristics and conditions of exchange. So now we come up with, so students, now I'll ask some questions from you all. Those who know the answers will tell me either in chat or will unmute himself or herself. So students, tell me, what do you understand by the term exchange? Anyone? What do you understand by the term exchange?
Yes, ma'am. Exchange is a process in which one person gives one commodity and the other one also gives the commodity to the other, and they will exchange, and the exchange plays between them. Okay. So just mute yourself. So in economics, independent, voluntary, mutual and legal transaction or transfer of commodities, money and service between two or more than two parties is called exchange. Economic term में किसी भी चीज के लिए independent, voluntary, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से विलिंगनेस होके, म्यूचुअल एंड लीगल ट्रांजैक्शन, जब हम किसी कमोडिटीज को लेके ट्रांसफर उसके लेके ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, किसी कमोडिटी को ट्रांसफर करना है या मनी को करना है या सर्विस करना है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, तो इसके बीच में ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं. सो इन इकोनॉमिक्स, इंडिपेंडेंट, वॉलेंट्री, म्यूचुअल एंड लीगल ट्रांजैक्शन or transfer of commodities, money and service between two or more than two parties is called exchange. Now, what are the benefits of exchange? What are the benefits of exchange? Exchange करने के क्या benefits होते हैं? Anyone? Okay, so I'll tell you. So the benefits of exchange are, first is fulfillment of a need of a person. एक person की जो need होती है वो fulfill हो जाती है, उसकी जो needs and wants होती हैं वो fully satisfy हो जाती हैं. Next is promotes mutual cooperation. एक दूसरे के साथ लोगों का म्यूचुअल कॉपरेशन बना रहता है, कोई किसी भी चीज में कोई इश्यूज नहीं अरोज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग अपने आप से इजीली सब कुछ हैंडल कर लेते हैं. सो दीज आर द बेसिक टू बेनिफिट्स ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट वी कम अप विद द व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज? देखिए आपने दो चीजें पढ़ी, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज. अब टाइप्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कमोडिटी एक्सचेंज एंड करेंसी एक्सचेंज. What is commodity exchange? A commodity exchange there means an exchange where we used to deal in commodities, when we exchange one commodity for with the another one commodity. And in currency exchange we used to exchange one currency with the other currencies of the nation. So these are the two types of exchange. If we talk about the forms of exchange, that what do you understand by the forms of exchange? So there are basically the two forms of exchange, that is the barter system or direct exchange or the indirect exchange. In barter exchange, again the same thing, exchange one commodity with the other commodity, and in money exchange we used to give one commodity in return of the money. Let's come up with your homework portion. First is exchange helps in fulfillment of a need of a person. Explain. Fulfillment. Explain this statement. Exchange helps in fulfillment of a need of a person. Explain this statement. आपका जो ये exchange है ये किसी पर्सन की जो नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है, तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ये कैसे होता है, किसी पर्सन की नीड्स या वांट्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं. Okay, so just don't copy the bookish language, it is already given in your books, but don't copy the bookish language. Write in your own words that what you have understand and what you understood, that how the exchange helps in fulfilling the person's needs and wants for a commodity or for a service. Next is distinguish between currency exchange and commodity exchange. Now you have to make three columns. One is for the basis of difference, second is for the commodity, and the third one is for the currency exchange. And you have to write at least 7 bases of difference about the currency exchange and the commodity exchange. So these are the two homeworks. Just write it down in your notebook. Yes, both the homeworks. Just write it down in your homework. Write it down in your notebook.
Everyone done? Okay. So students, with this, here I am winding up with my class. Thank you, students.